انوار کاکڑ نے کیا کہا کہ میں نے پاؤں پر سے ان کی بات کی تو یہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. 17 سیٹوں والوں کو اقتدار اگر دے دیا گیا ہے تو ان کو کون مانے گا اور کون ان کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اور میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز رہے گا رہنے کا. لہٰذا آج جو بھی کوئی سچویشن ہے پبلک آزاد کشمیر میں کیا ہوا آئی نا پبلک باہر نکلی, ہر مطالبہ کو ماننا پڑا ان کو, اور اسی طرح پبلک نکلے گی, لوگ نکلیں گے اور یہ کٹ پتلی بھاگ جائیں گے. یہ سوچیں اس دن سے جس دن یہ ملک چھوڑ کے بھاگے. تو یہ جو شرح سود 1.5% کم کی ہے اسٹیٹ بینک نے, یہ تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اونٹ کے منہ پہ زیرہ ہے. ٹو لیٹ. یہ تو 14-15% پہ آئے گا تو انڈسٹری چلے گی. سو بات یہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اسٹیٹ بینک بھی, فائنانس منسٹری بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح قرضوں سے بھی اور ٹیکسوں سے بھی حکومت کو پیسے آئیں اور IMF کو سیٹسفائی کر لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دی ادر سائڈ میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی. ناظرین, ملک میں جو سیاسی ہلچل چل رہی ہے, نئے کیسز کی گونج بھی سنائی دے رہی ہے. دوسری جانب اگر تحریک انصاف کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مشکلات کا شکار تو ہے ہی, لیکن بجٹ کے بعد وہ کچھ تحریک کی باتیں ان کی جانب سے بھی سامنے آ رہی ہیں. اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بجٹ اور عید کے بعد ان کے نیکسٹ پلانز کیا ہوں گے, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا کوئی لانگ مارچ ہوگا, کوئی تحریک چلائی جائے گی جو کہ آلریڈی ان کی تحریک چل بھی رہی ہے, اور کیا مولانا صاحب اس تحریک میں ان کے ساتھ ہوں گے. اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے شعیب شاہین صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے بہت زیادہ ایکٹیو ممبر ہیں, بڑے اہم ممبر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم شعیب صاحب. شعیب صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پرسوں سوات کے جلسے میں علی امین گنڈا پور صاحب کے مطابق جب ہم اسلام آباد کی جانب جائیں گے تو اس سے پہلے ہی یہ لوگ بھاگ جائیں گے. پلانز کیا ہیں ایکچوئل میں آپ کے بجٹ اور عید کے بعد؟ بالکل ہمارا پلان ہے تحریک چلانے کا اور دھرنا بھی دینے کا اور مظاہرے بھی کرنے کا, اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں بالکل آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے پاس پہلے ہی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اپنا رہنے کا. فارم 47 کی یہ پیداوار ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے, یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آئے ہیں. ان کے پاس نہ اخلاقی جواز ہے, نہ آئینی جواز ہے, نہ قانونی جواز ہے. تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جس طرح کی یہ فیصلے کر رہے ہیں, جس طرح کی یہ ناکام لوٹے ہیں 3-4 ملکوں سے, ان کے پاس سسٹین کرنے کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. یہ دبئی لیگز میں ان کے نام نکلے ہیں, یہ گندم سکینڈل میں ملوث ہیں. تو یہ کرپٹ مافیا کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے, یہ زیادہ دن رہنے والا نہیں. شعیب صاحب, دھرنا ہوگا یا لانگ مارچ ہوگا, پلانز میں ابھی تک ڈیسائیڈ ہو گیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے آپ کی بات ہو گئی کہ کیا ایگزیکٹلی کرنے جا رہے ہیں؟ پروسیس میں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ تحریک کے لیے ہمیں تیار ہیں. خان صاحب نے اب ہمیں حکم دینا ہے, اور انہوں نے جو بھی ایک پلاننگ ہوگی فائنل, اور عید کے بعد انشاءاللہ تو جلدی یہ ہم اناؤنس بھی کریں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں گے. شعیب صاحب, 2014 میں بھی 126 دن کا دھرنا دیا تھا تحریک انصاف نے. اس وقت بھی یہی ان کا تھا کہ حکومت گرا دیں گے, لیکن حکومت گری نہیں تھی. ابھی بھی اسی طرح کے گنڈا پور صاحب نے کلیم کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے جانے سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا فیکٹس ہیں جس کی بیس پہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے آپ کے جانے سے پہلے؟ وہ چیزیں, وہ زمانہ اور تھا, آج کا زمانہ اور ہے. اس وقت کی سیٹوں کا معاملہ الگ تھا. آج 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کٹ کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. نہ فارم 47 کو. انوار کاکڑ نے کیا کہا کہ میں نے فارم 47 کی بات کی تو یہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. 17 سیٹوں والوں کو اقتدار اگر دے دیا گیا ہے تو ان کو کون مانے گا اور کون ان کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اور میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز رہے گا رہنے کا. لہٰذا آج جو بھی کوئی سچویشن ہے پبلک آزاد کشمیر میں کیا ہوا آئی نا پبلک باہر نکلی, ہر مطالبہ کو ماننا پڑا ان کو, اور اسی طرح پبلک نکلے گی, لوگ نکلیں گے اور یہ کٹ پتلی بھاگ جائیں گے. یہ سوچیں اس دن سے جس دن یہ ملک چھوڑ کے بھاگے. اور آج بھی وقت ہے کہ یہ اس ملک کے اوپر رحم کریں, جمہوریت کو کے فیصلوں کو مانیں, جمہور کے فیصلے کو تسلیم کریں, حق حکمرانی عوام کو دیں. یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والے یہ جو ڈاکہ اور مینڈیٹ کو چوری کر کے آئے ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے فیصلے کریں. یعنی کہ شعیب صاحب ایکسپیکٹ کریں کہ جولائی کے اینڈ یا اگست کے سٹارٹ پہ آپ لوگ جو بھی لانگ مارچ یا دھرنا ہے وہ لے کے پھر اسلام آباد کی جانب جائیں گے؟
इंशाल्लाह। ठीक, शोएब साहब, सर इस वक्त जो मूवमेंट की कामयाबी है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसीडर जो किया जाता है वो ये होता है कि कम से कम एक इत्तेहाद हो पार्टी के अंदर। अगर रैंक एंड फाइट के हवाले से देखिए, आपकी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग की बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं जो कि सामने आ जाती हैं, हर कोई एक दूसरे की टांगे ऐसे लगता है जैसे खींचने पे लगा हुआ है। सर ये चीज़ें कम से कम आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को या आपके जो अपोजिट हैं उनको एतमाद देती है कि जब तक इनके अंदर इत्तेहाद नहीं है ये कैसे हमारी हुकूमत गिरा सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी बिल्कुल मुत्तहद फैसले करती है, पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी, जिसका दोनों का मैं मेंबर हूँ, और फाइनल अप्रूवल देता है इमरान खान। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है, छोटी मोटी बातें होंगी, मगर ये मतलब नहीं है कि कोई ग्रुप बदली या धड़ा बदली या कोई ऐसी चीज है। कोई इशू नहीं है। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि आप सारी पार्टी, आप सब इमरान खान के सिपाही हैं, उसके वर्कर्स हैं, और हमारा लीडर एक ही है, वो है इमरान खान, और किसी किस्म का कोई बहाना नहीं है। ठीक, शोएब साहब, पीपल्स पार्टी के साथ क्या आप लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जैसे आपके जो बानी चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि जेल से बैठ के उन्होंने ये कहा है कि मुझे उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि बजट के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी। मंजूर वसान के हवाले से अगर देखें, उन्होंने भी ये पेशन गोई की है कि 3 महीने तक ये हुकूमत चलेगी, उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों के पीपल्स पार्टी के साथ क्या कोई रवाबित हैं, क्या कोई बात पता चली है कि किस तरह से आप लोग इतने कॉन्फिडेंट थे, बानी पीटीआई इतने कॉन्फिडेंट थे? मंजूर वसान ने भी ऑलमोस्ट वही बात कर दी। देखिए, हमें सियासी, आप इमरान खान ने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार नहीं है, आज से 2 साल पहले कहा था। 100% उस वक्त लोगों ने कहा, उस पर कंटेम्प्ट नोटिस भी हुआ, आपको पता है, मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, और पूरा पाकिस्तान ही कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, इनसे तो अच्छा बंदा कोई नहीं। क्या हुआ? आज पूरे पाकिस्तान का हर शख्स समझता है कि ये न सिर्फ ये गैर जानबदार नहीं है, बल्कि ये सारी मैनिपुलेशन करने में इनका मरकजी किरदार है। आपके सामने आ गया। इमरान खान ने आज से 1.5 साल पहले कहा था कि लंदन प्लान का हिस्सा है कि ये नवाज शरीफ को लाएंगे, उसके केस खत्म करेंगे। उस वक्त तक उसके आने का कोई चांस नहीं था। ये इमरान खान को जेल में डालेंगे, नायल करेंगे, और उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन और मेरी पार्टी को डिसमेंटल करेंगे। उस वक्त 9 में नहीं हुआ था। 9 में को ड्रामा बना के उन्होंने फिर डिसमेंटल करने की कोशिश भी की, और एक्चुअली किया, किंग्स पार्टियां बनाई। लेकिन चौथी बात की थी, उसके बावजूद भी मैं जीतूंगा। आपके सामने इसके बावजूद के बल्ले का निशान नहीं था, सब कुछ था, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम फिर भी जीते हैं, आपके सामने ही है। तो इसी तरह ये एक सियासी असेसमेंट होती है, एक बंदे की एक होती है, क्या नाम है, छठी होती है जो काम करती है, और उनको ज़ाहिर नजर आ रहा है कि कोई भी अवाम के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे बताएं, आज तक मौलाना फजल रहमान सिवाय हमारे 3.5 साल के दौरे इक़्तिदार के अलावा कब इक़्तिदार से पार रहा है? आज बाहर बैठा है, क्यों बैठा हुआ है? उनको नजर आ रहा है कि जो नवाज शरीफ की कश्ती के ऊपर सवार होगा या उसके साथ बैठेगा, उसका हमेशा के लिए फ्यूचर खत्म हो गया। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने आप को अपना फ्यूचर खत्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने के लिए तैयार होगा। मुस्लिम लीग नून के साथ तो नहीं बैठेगा, लेकिन मौलाना साहब अभी आपके साथ कहां तक पहुंचे मुज़ाकरात? आपके साथ बैठने के लिए तैयार हो गए? मुज़ाकरात जारी हैं, मगर हमारे साथ बैठे या ना बैठे, मगर हम तो नून की बात कर रहे हैं ना। नून के साथ जो बैठेगा उसका सफाया हो जाएगा। आपने मुस्लिम लीग ओपीएम अपना एमक्यूएम को देखा, एमक्यूएम के 5-5 हजार 3-3 हजार वोट पे आ गए, सिर्फ एक बात पे कि इनके साथ बैठ गए पिछले पीटीएम 1 की सूरत में, इसलिए कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता, और सारा का सारा उनका मैंडेट जारी है, वो खुद मानते हैं। आपने देखा नहीं मुस्तफा कमाल ने क्या कहा? हाँ जी, वो हमारा सारा 100% मैंडेट जारी है, और पीपल्स पार्टी और नून का 60-70% जारी है। अगर ये सिचुएशन है तो सबके सामने आ चुका है। अच्छा शोएब साहब, हमने नून लीग की तो बात की है, मौलाना साहब के हवाले से मैंने सवाल किया। पीटीआई चाह रही है कि मौलाना साहब इस तहरीक में आप लोगों को ज्वाइन करें, आप लोगों की शायद कोई कमेटी भी बन गई है उनसे बात करने के लिए। कोई वहाँ से बर्फ पिघलती नजर आ रही है? वो इस तहरीक में आपका साथ देंगे, या ठीक है वो आपके अगेंस्ट भी नहीं है लेकिन आपके हक में भी नहीं है, इस किस्म की सिचुएशन है? क्या एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? मुश्तरका तौर पर तो तहरीक चलती है या नहीं, मगर एक बात तय है कि हमारे जो नुकात हैं कि तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके लिए तो उनका वो है। और मेरा ख्याल है कि इस जो मुत्तहिदा एक पोजीशन बनी है, मेरा ख्याल है उसमें शायद शामिल हो जाएं। अगर वो नहीं भी होते हैं तो इवन देन कोई उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तहरीक बहरहाल चलेगी, और बेशक अलग अलग चैनल्स पे चले या इकट्ठे होकर चले, लेकिन एक बात तय है कि फ्यूचर में
اس کٹپتلی حکومت کا خاتمہ ایک مطمئن نظر ہوگا، میرا، ہمارا بھی اور ان کا بھی۔ شعیب صاحب ایک آخری سوال سر آپ سے، بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی اگر بات کریں تو بہت سارے کیسز ہیں جن میں ان کو ریلیف مل گیا ہے، ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، جیسے کہ حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جتنی جلدی میں یہ کیسز کی سزا سنائی گئی یہ ختم ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ اب رہ گیا ہے عدت میں نکاح والا جس میں ان کی سزا ختم ہونا باقی ہے، لیکن اگر ایکچوئل پوائنٹ یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ دوسری جانب حکومتی حلقوں کی جانب سے گونج ہے نئے کیسز کی، اور یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اطلاعات ہیں کہ جو مناسب ٹائم ہوگا اس پہ وہ کیسز سامنے لائے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی لیگل ٹیم کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں کیسز سارے ختم ہو گئے ہیں اور اس کا بھی فیصلہ پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن بڑی زیادتی کی ہے ان جج صاحبان نے، جس سارا کیس 6 مہینے سننے کے بعد اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ جلدی آ جائے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں ہے جس میں ضمانت نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر اور مقدمے ڈالتے بھی ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج سب کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کیسز کی کیا حیثیت ہے۔ سائفر کا کیس کا بڑا تماشا تھا، توشہ خانہ کے کیسز کے تماشے تھے، وہ آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا انجام ہوا، اور اسی طرح القادر ٹرسٹ کا تھا، اس میں ضمانت ہو گئی۔ تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کیس میں آپ کو 9 مئی میں سے آدھے کیسز میں تو ان کو ویسے ہی کٹل دے دی گئی ہے، باقی آدھے کیسز میں ضمانت ہوئی بھی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا سیریس کیس اب بنا سکتے ہیں یا ان کے پاس اب کیپیسٹی ہے ایسا کچھ کرنے کی، چونکہ یہ اپنا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں۔ شعیب صاحب کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ کم از کم 1 سال مزید اندر رکھنے کا پلان ہے، اس سینس میں نے پوچھا کہ اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی لیگل ٹیم کی؟ یہ ان کی بس نان سینس قسم کی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی لیگل گراؤنڈ نہیں ہے۔ یہ تو 35 سال سزا دے چکے تھے الیکشن سے پہلے، آپ نے دیکھا نہیں کیسے عوام میں اڑ گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ جتنا بھی یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ رعایت ختم کر دیں۔ بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے بڑے زیادہ بہت ایکٹیو ممبر ہیں اور بہت ویل اویئرڈ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور ناظرین جیسا کہ کچھ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ کچھ نئے کیسز بنائے جائیں گے اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی سنائی دے رہی ہیں، گونج رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا 1 سال جو ہے بانی پی ٹی آئی کو مزید جیل میں رہنا پڑے نئے کیسز کے حوالے سے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم کے ممبران ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ کوئی اس طرح کے بڑے کیسز سامنے نہیں آ سکتے، نہ ہی بن سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے 9 مئی کا حوالہ دیا، القادر ٹرسٹ کا حوالہ دیا، انہوں نے دوسرے کیسز کا حوالہ دیا۔ پیچھے انہوں نے کہا کہ ایک کیس ہے جو کہ عدت میں نکاح کا ہے، تو وہ بھی وہ کہتے کہ چونکہ فیصلہ تو ہم سب کے سامنے ہی تھا کہ آ جانا تھا، لیکن عین فیصلے والے دن جج صاحب نے اس کو واپس بھیج دیا کہ مجھ پہ عدم اعتماد کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی اپنی جانب ایک ہسٹری ہی بن گئی ہے کہ فیصلہ سنانے والے دن بھی جج صاحب اس کو واپس بھجوا سکتے ہیں، جی کسی دوسری عدالت کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ ملک میں بجٹ آنے جا رہا ہے، کیا یہ بجٹ عوام دوست ہوگا؟ ہر دفعہ ہم یہی بات کرتے ہیں، ہر دفعہ یہی ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، یہی حکومتیں ہیں، یہی سیاسی پارٹیاں جو کہ یہی بجٹ لے کے آتی ہیں، اور کچھ بجٹ پچھلے بجٹ سے اگر دیکھا جائے تو ڈیفرنٹ نہیں ہوتا، لیکن امیدیں تو ہر دفعہ باندھ کے ہم لوگ عام آدمی کی طرح رکھتے ہیں۔ اب کی دفعہ بھی امیدیں ہیں، لیکن کوئی خاص اس میں بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اب تک کہ بجٹ آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن فی الوقت جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس پر ڈسکشن کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بجٹ 2024-25 آنے کو تو ہے، لیکن اگر شاید پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک ذرا سا سرسری سا جائزہ لیں تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا بجٹ ایسا ہوگا جو آنے کو تو تیار ہے، لیکن آئے گا کب ایگزیکٹلی ڈیٹ کا ہمیں نہیں پتا کہ کب آئے گا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ 12 تاریخ کو آئے گا، لیکن جس طرح کے حالات و واقعات ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو بجٹ آئے گا۔ آج 10 تاریخ کا، اگر 12 کو آنا ہے ایک دن بیچ میں رہ گیا ہے، جبکہ اس حکومت کے اپنے اتحادی نالہ نظر آ رہے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس بجٹ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑے سیزنل پولیٹیشین ہیں، اگر پیپلز پارٹی کے بڑے ایکٹیو اور سیزنل پولیٹیشین کو اس بجٹ کے بارے میں نہیں پتا تو پھر یہ یقیناً پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے۔ دوسری جانب کچھ اس حکومت کے بارے میں پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی پیشن گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ منظور وسان صاحب جو کہ ہمیشہ پیشن گوئیوں کے حوالے سے بڑے زیادہ اہم کنسیڈر کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ایسی پیشن گوئی کر دی ہے کہ یہ 3 مہینے کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ کیا پیپلز پارٹی واقعی میں حکومت کا ساتھ چھوڑنے جا رہی ہے؟ کیونکہ بجٹ کے حوالے سے بھی اس کو تحفظات ہیں، اوورال سچویشن میں بھی اس کو تحفظات ہیں۔
नाज़रीन, बजट हतमी तौर पे तारीख़ नहीं बताई जा रही, 12 तारीख़ है। इससे पहले बजट के जो डिस्कशंस हैं वो नहीं है मंजर यहाँ पे। कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बजट के हवाले से नॉर्मली सामने आते हैं वो सामने नहीं है। इतना तो हमें मालूम है, आइडिया है कि ये IMF के मर्ज़ी के मुताबिक ये बजट होगा, लेकिन क्या अवाम दोस्त बजट होगा? नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक में जैसे पहले मैंने कहा कि अवाम दोस्त हम हर दफ़ा बात कर देते हैं कि अवाम दोस्त बजट होगा नहीं होगा। हर साल बजट पे ये डिस्कशन होती है अवाम दोस्त होगा नहीं होगा, लेकिन क्या अवाम दोस्त बजट एक्चुअल में होता क्या है, इस सब पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं, उसमें ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि जो बजट बन रहा है या शायद बन चुका है, अगर पीपल्स पार्टी को नहीं पता तो जैसे MQM ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, तो फिर ये PMLN कर क्या रही है? आखिर ये क्या PMLN को भी पता है या नहीं पता? वज़ीर आज़म साहब के ख़ुद के भी नॉलेज में नहीं है या नहीं है इस बजट के हवाले से, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना जो बजट बना रही है IMF के साथ, ये बड़ा अलार्मिंग सी सिचुएशन सामने आ रही है। उसकी गाइडलाइन के मुताबिक ये बन रहा है। IMF की तजावीज़ के हवाले से बात कर लें तो तमाम सेक्टर्स की जानिब से भी कुछ हुकूमत को तजावीज़ पहुंचाने की कोशिश की गई है और कुछ पहुंचाई भी गई हैं। जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, क्या हो सकता है इस बजट में, उसके मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ। पेट्रोलियम पे 5% सेल टैक्स आयद करने की तजावीज़ हैं, जिसके मुताबिक जिससे तकरीबन 600 अरब रेवेन्यू जमा होने की तवक्को है। हुकूमत को 2000 अरब से ज़्यादा के मज़ीद टैक्सेस लगा रहे हैं नाज़रीन इस बजट के अंदर। तो ये बहुत वाज़ेह है। इस हवाले से कई अवामिल जुड़े हुए हैं, लिहाजा अगर ये कहे कि ये बजट हुकूमत के लिए आसान होगा तो ये आसान नहीं होगा। ये बजट काफ़ी मुश्किल होगा हुकूमत के लिए। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 4 साल के बाद शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया, यानी कि 1.5% उन्होंने शरह सूद का ऐलान कर दिया है। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर कैस असलम इकोनॉमिस्ट है, माहिर सीनियर इकोनॉमिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमेशा हर बजट में हम यही डिस्कशन करते हैं कि अवाम दोस्त बजट होगा, क्या अवाम दोस्त बजट नहीं होगा? एक्चुअल में अवाम दोस्त बजट होता क्या है? शुक्रिया। बात यह है कि ये तो मीडिया अवाम दोस्त या नाम अवाम दोस्त कहता है, बजट तो हुकूमत चलाने का नाम है। अच्छा, जो बजट जा रहा है उसमें जितने का हुकूमत को पैसे आने थे टैक्सों और नॉन रेवेन्यू के थ्रू, उससे थोड़ा सा ज्यादा 7.5 ट्रिलियन रुपए तो कर्जा लेना था, वो भी ले लिया, मगर टैक्स नहीं पूरे हुए। पिछला बजट जो गया है उसमें 52% जो है वो तो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। तो अब आप देखिए, जब आप इंटरेस्ट, डिफेंस, ये पेंशन, ये सब दे लें तो हुकूमत के पास बहुत कम बचता है। इस दफा भी जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था, प्लानिंग कमीशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है कि जनाब आपने ये कट किस तरीके से लगा दिए, पूछा ही नहीं है पार्लियामेंट से। सो द पॉइंट आप जो कह रही हैं वो ये है कि अवाम दोस्त नहीं होगा, टैक्स लगेंगे, बहुत ज्यादा लगेंगे। देखना तो ये है कि क्या इंडस्ट्री चल सकती है इस सूरत हाल में, जब बिजली भी महंगी होगी, तेल पे भी सेल टैक्स लग जाएगा, गैस भी महंगी है। तो ये जो शरह सूद 1.5% कम की है स्टेट बैंक ने, ये तो हम अपनी जुबान में कहते हैं ऊंट के मुंह पे जीरा है, टू लिटिल टू लेट। ये तो 14-15% पे आएगा तो इंडस्ट्री चलेगी। सो बात ये मेरा ख्याल है कि अभी भी स्टेट बैंक भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह कर्जों से भी और टैक्सों से भी हुकूमत को पैसे आए और IMF को सेटिस्फाई कर लिया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है ये सारी कोशिशें तो की ही जा रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद आपके लिए भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपने भी इतने माशाल्लाह बजट को कवर किया है, हर साल ये डिस्कशन होती है। क्या बात की जाए इस बजट के हवाले से, वो बजट जो कि आने को तो तैयार है, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्टली कि बजट आना कब है। 12 तारीख पहले एक तारीख रखी गई, फिर 12 तारीख बताई जा रही है। आपको पता है डॉक्टर साहब, जब बजट आना होता है तो बड़ी उससे पहले शोर शराबा शुरू हो जाता है, बड़ी डिस्कशन शुरू हो जाती है और कुछ फैक्ट्स फिगर्स सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब की दफ़ा ऐसा कुछ है नहीं, डिटेल बहुत ज़्यादा सामने आ नहीं रही है, कुछ या यूँ कह लें कि उसको मंजर यहाँ पे लाया नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब?
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پولیٹیکل حکومت ہے جس میں PDM-2 یہ ایک کمزور حکومت ہے، یہ اپنے اتحادیوں سے بھی ڈرتی ہے. اب جو وہ 3 مہینے کا کہا ہے پیپلز پارٹی کے کسی ایک لیڈر نے، وہ تو اصل تو یہ ہے کہ نومبر میں جو الیکشن ہو رہا ہے امریکہ میں، اور اگر ٹرمپ صاحب آ گئے تو وہ اس حکومت کے حق میں نہیں ہوں گے. وہ صرف یہ اشارہ ہے، ادروائز کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ بجٹ جو ہے وہ تو IMF نے شرطیں رکھ دی ہیں، آپ نے وہ شرطیں پوری کرنی ہیں. IMF نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا پاکستان کو پیسے دینے میں. 90% ہمارے GDP کا قرضہ چڑھا ہوا ہے ہم پہ، جس میں 50% جو ہے وہ اندرونی قرضہ ہے، انہیں کو IPPs اور گیس کے، اور 40% ایکسٹرنل ہے. سو اس سارے کے اندر جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید ہو جائے کہ گورنمنٹ کے جو احکار ہیں ان کو 10-15% ہر سال ان کو بڑھا دیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی بڑھا دیا جائے گا، اس سے زیادہ عوام دوست نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اور آپ تو چلیں اپنی جگہ کنسرنڈ ہیں ہی اس حوالے سے کہ کچھ فیکٹس فگر سامنے نہیں آ رہے بہت زیادہ، لیکن حکومت کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نہیں پتا بجٹ کے حوالے سے. کل خورشید شاہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں بجٹ آ کیا رہا ہے، اس میں ایگزیکٹلی بجٹ میں ہے کیا. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے سیزنل پولیٹیشین ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو تو پتا ہوگا، شاید عوام کو پتا نہیں ہوگا. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی PMLN نے نہیں بتایا ہوگا، اسپیشلی پیپلز پارٹی کو، اس کو بجٹ کا نہ پتا ہوگا کس طرح سے بجٹ بن رہا ہے؟ شرمیلا فاروقی ایک دن پہلے ایک پروگرام میں بڑی اگریسو تھی اس بجٹ کے حوالے سے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا بجٹ کیا بن رہا ہے، پیپلز پارٹی کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. یہ کیا چل کے رہا ہے یہ ایگزیکٹلی؟ اتحادی جو ہوتے ہیں وہ فائدہ مانگتے ہیں نا حکومت سے آخری دنوں میں. بات یہ ہے کہ جب تک بجٹ ڈاکومنٹ چھپتا نہیں ہے یہ تو پتہ ہی نہیں لگے گا. جب تک فائنانس منسٹر کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے کسی کو نہیں پتہ لگے گا. میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو گئے تھے ہمارے پرائم منسٹر صاحب چین، اس دورے سے پتہ لگنا تھا کہ ہمیں کچھ انویسٹمنٹس، کچھ پیسے، کیونکہ جو وعدے ہمارے عربی دوستوں نے کیے ہیں وہ تو وعدے ہی ہیں، ابھی تک پیسے نہیں آئے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ان کو کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ملا. تو اس لیے ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے اخراجات اور اپنے ٹیکس ریونیوز جو ہیں ان کو کنسولڈیٹ کیسے کیا جائے، کیونکہ قرضے واپس کرنے ہیں اور بڑا اکانومی چل نہیں رہی. IMF کو بھی خوش کرنا ہے، ووٹر کو بھی خوش کرنا ہے، جو ووٹر کو خوش یہ کر سکیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی ابتدائی یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق، حکومت نے پہلے 10 مہینے میں 5,242 ارب روپے قرض لے لیا ہے. رواں مالی سال کے ابتدائی 10 مہینے میں حکومت کی جانب سے اتنا قرض لے لیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بینک کرپسی کے بارے میں بات کریں تو ہم بینک کرپٹسی جو ہے اس سے تو چلیں باہر نکل ہی آئے ہیں، لیکن ابھی ہم بہت زیادہ سیکیور ویو میں نہیں ہیں، ہم اس کے آس پاس ہی ہیں، یعنی کہ کچھ یوں کہہ لیں کہ ڈینجر زون میں ہی ہیں آلموسٹ. اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور نہ فیل کیا جائے، اس کے پاس ہی ہیں. پاورٹی لائن سے اوپر جتنے لوگ ہیں، کتنے پاکستانی ہیں، پاورٹی لائن پہ تو چلے بتایا جاتا ہے، لیکن اس سے ایگزیکٹلی اوپر کتنے پاکستانی ہیں وہ بھی آلموسٹ پاورٹی لائن میں ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں. ہم کیسے بیٹ کریں گے؟ ہم ایگزامپلز دیتے ہیں ساتھ والے ملکوں کی، ہم ٹیکس کا کہتے ہیں جی ٹیکس پے کریں، عوام کو ریلیف کوئی نہیں ہے. ہم کیسے بیٹ کریں گے ان ساری مشکلات کو؟ حالات کیسے بہتر ہوں گے آپ کے مطابق ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آفیشیل اعداد و شمار کے تحت 40% لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں جی، مگر اتنے ہی تقریباً 35-40% جو ہیں وہ غریب ہیں مگر پاورٹی لائن کے اوپر ہیں. 1,000 روپے جو منیمم ویج ہے 1,100 اس کے وہ کما لیتے ہوں گے، مگر جو باقی رہ جاتے ہیں 20%، اس میں سے 5 سے 7% جو ہیں وہ سپر رچ ہیں، وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور مراتے بھی لیتے ہیں. تو یہ 15% جو مڈل کلاس ہے وہی پھنسی ہوئی ہے اور وہی پھنسی رہے گی اس سارے میں. دوسری بات آپ نے جو بات کی ہے کہ
हमारी जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी हम इकोनॉमिकली वायबल हो ही नहीं सकते। हम जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा लेते और उस पे इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया हुआ। आप देखिए कि हमारे जो यूथ बल्ज है, बच्चे हैं, उनको स्किल्स दे दें तो वो बाहर जाके भी आपको डॉलर भेज सकते हैं, उसके अंदर भी ग्रोथ दे सकते हैं। हमारी सर्विस सेक्टर जो है वो 52% जीडीपी का है, हमने उसको एक्सपोर्टेबल ही नहीं बनाया हुआ। आप देखिए इस दफा ग्रोथ आपको दी एग्रीकल्चर ने और अब किसान रो रहा है कि आपने उसका अनाज ही नहीं खरीदा। आप बड़ी इंटरेस्टिंगली देख लीजिए कि सिर्फ पीएमएलएन अपने दोस्तों को मराते देगी इस बजट में भी और वैसे भी। ठीक, यानी कि आपको ये बजट में कोई बहुत ज्यादा तौक़ुआत नहीं लग रही है, जैसे कि अवाम को भी नहीं लग रही है, महंगाई नजर आती है। महंगाई नजर आती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर माशियात, आपने हमें ज्वाइन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि ये जो इंडस्ट्री के हवाले से डॉक्टर कैस असलम साहब ने सवाल उठा दिया है, क्या इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी? क्योंकि अगर इंडस्ट्री के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से देखें तो वो उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। इस सब पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अमजद इकबाल साहब हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, इनके अलावा सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अमजद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आइंदा माली साल के लिए जो सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ है, जो अभी तक के कुछ डिजिट सामने आए हैं, गो के बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता कि ये बजट क्या एग्जैक्टली आने जा रहा है। उससे पहले डिस्कशंस होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ जाते हैं जो कि अभी कुछ सामने नहीं आ रहा, कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं। 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़ है सर, अचीवेबल है ये? देखिए, ये सनती शोबे की ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो फिर हमें उसके लिए बहुत से इकदाम करने की जरूरत होती है, क्योंकि सबसे पहले तो आज के दिन हुआ वो ये हुआ कि शरह सूद में कमी की गई है जी, 1.5%। जी, 1.5% कमी की गई है और ये आप पिछले कई साल से ये 22% के ऊपर थी, पिछले 4 साल से। जी। अब 20.5% पे आ गई है ये। यानी ये एक तो पहला स्टेप मैं समझता हूँ कि ये सनती तरक्की के लिए ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज जो सनती तरक्की के लिए होती है वो होती है कि उसका जो इनपुट्स दीगर, जैसे आप बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में कमी की बात करते हैं तो वो तो होती नजर नहीं आती कि वो उनमें आप कमी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपके ऊपर एक और जो तलवार समझ में लटक रही है वो है IMF की या और वो टैक्सेस की, जो वो कह रहे हैं कि जी आप आमदनी को बढ़ाए। इसलिए ये एक काम जब ये कर लेते हैं हम कि जी कि हम यहाँ पे शरह सूद में कमी कर दी, उसमें ये अभी काफी नहीं है मेरे ख्याल में कि जी कि ये 1.5% जो कमी की गई है इससे ज्यादा होनी चाहिए थी अगर आप सनती शोबे को उस टारगेट तक ले जाना चाहते हैं, उस तरक्की को जिसका आपने जिक्र किया कि 4% या उससे ज्यादा का 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। जी, 4.4% तक अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आपको एक तो शरह सूद में और कमी करना पड़ेगी, दूसरी जो इनपुट्स है उनमें आपको कमी करना पड़ेगी, और तीसरा जो बेसिक चीज होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए, मतलब कि ये तो कीमतों की कमी की बात अपनी जगह पे, लेकिन अवेलेबिलिटी की भी तो एक पॉइंट है ना। आपको अगर फर्स्ट करें कोई यूनिट लगता है नया तो उसको गैस की फराहमी, उसको बिजली की फराहमी, जबकि इस वक्त मुल्क के बहुत से हिस्सों में हमें नजर आता है कि बहुत ज्यादा लोड शेडिंग भी हो रही है। तो इन हालात में जो सन की तरक्की का जो आप कह सकते हैं टारगेट है वो इस तरह से तो होता नजर नहीं आता, लेकिन एक पॉइंट जरूर है। देखिए, जब आप सन की तरक्की मुल्क की बात करते हैं कि हमारे मुल्क में हो रही है तो उसके लिए एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक फैक्टर है जो इस वक्त हमारे सामने आप ये कह लें कि चाइना की सूरत में नजर आ रहा है, जो सऊदी अरब की सूरत में नजर आ रहा है, कतर की शक्ल में नजर आ रहा है, या और 2-3 ममालिक जो दोस्त ममालिक है उसमें कुछ रशिया की तरफ से भी आ रहा है कि वो यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे। अगर वो यहाँ पे सरमायाकारी उनकी मेच्योर हो जाती है यहाँ पे होनी पाकिस्तान के अंदर, खसूसी तौर पर चाइना के जो CPEC फेज 2 है जिसके लिए अभी वज़ीर-ए-आज़म गए हुए थे, अगर उसके ऊपर इस साल में इम्प्लीमेंट होता है तो फिर हम इस टारगेट को ना सिर्फ अचीव कर सकते हैं बल्कि इससे ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अमजद साहब एक पॉइंट है, मेरा भी एक पॉइंट ले लीजिएगा, फिर दोनों का इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। आने वाले बजट का जो टारगेट अभी मैंने आपके सामने रखा है फिल वक्त डिजिट्स के मुताबिक वो 13,000 बिलियन का है, और किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए ज़ाहिर सी बात है प्लान ए तो होता है जो फ्रंट पे होता है, उसके अलावा प्लान बी भी होना चाहिए। तो ये टारगेट, जैसे कि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो
बगैर इंडस्ट्री की सपोर्ट के तो किसी भी तरह से लगता नहीं है कि पूरा हो सकता है। सूरत हाल के मुताबिक जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है उसके मुताबिक जो एनर्जी प्राइजेज है इंडस्ट्री की, अगर इंडस्ट्री के ही मुताबिक मैं आपसे बात करूं तो तमाम रीजन्स में इंडस्ट्री ये कहती है कि सबसे ज़्यादा हाई प्राइजेस जो हैं वो हमारे ही हैं, यानी कि 16 सेंट हैं। अगर इंडिया के अंदर देख लें तो वो 7 हैं, बांग्लादेश के अंदर देख लें तो ये 8 सेंट है। क्या इंडस्ट्री इतने हाई जो है प्राइजेस पे इस सारी सूरत हाल में इस बजट को सपोर्ट करेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमारा बजट का हदफ है ना वो 13 नहीं है, 18 है। और क्योंकि पिछले साल 15 था, उसमें 3000 का इजाफा किया जा रहा है इस वक्त। हाँ, अच्छा। आप जो 13,000 अरब की बात कर रही हैं वो टैक्सेस की है कि रेवेन्यू कितना जनरेट हम करना है हमने, वो उसका टारगेट है। जी बिल्कुल उसी की बात है जी, तकरीबन 13,000 बिलियन। जी 13,000 अरब या 13,000 बिलियन, आप उसको 13,000 बिलियन का टारगेट है उसका। और पिछले साल वो था तकरीबन 9,000 का। और उसमें इतना बड़ा इजाफा जो वो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कैसे अचीव होगा, कि जबकि इस वक्त जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है कि वो इतनी अच्छी नहीं है। जिस चीज का आपने जिक्र किया कि जो इंडिया के मुकाबले में या बांग्लादेश के मुकाबले में जो कीमतों के हवाले से, जो उनके जो पावर की कीमतों के हवाले से आप जिक्र कर रही हैं, तो वो यहाँ पे देखिए, इसको एक चीज तो ये जहन में रखिए कि जब तक हम यहाँ पे सस्ती बिजली पैदा नहीं करेंगे, सस्ती बिजली को के यूनिट्स नहीं लगेंगे, दो चीजें ना। इस वक्त आप देखिए कि कितना इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है। हमें तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी यकीनी बनानी है ना, उसके लिए जो नए प्लांट है वो लगे जो सस्ती बिजली पैदा करते हों। और जो पुराने प्लांट जिनका आपने जिक्र किया कि वो हम महंगी उनसे ले रहे हैं, जो आईपीपीज पुराने वाली हैं उनसे महंगी बिजली ले रहे हैं, तो जब ये मिक्स होगा तो फिर इसमें जो पर यूनिट रेट नीचे आ सकता है। उसमें आपकी हाइडल भी आ जाती है, उसमें कोल की भी आ जाती है, उसमें जो विंड की भी आ जाती है, और बाकी सारी चीजें आएंगी। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है, एकदम से एक साल में ये सारा कुछ होना मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन जो दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि जी कि इतना बड़ा टारगेट जो रखा गया हुकूमत की तरफ से कि जी कि 13,000 अरब का अगर हम अपने रेवेन्यू का टारगेट रखते हैं, अपने टैक्सेस की कलेक्शन का टारगेट रखते हैं, तो फिर हमें उसके लिए सबसे पहली बात तो ये करनी है कि हमें अपनी स्मगलिंग रोकें। सबसे पहला काम तो यह कि देखिए, इस वक्त जो एक फिगर है उसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है कि इस वक्त तकरीबन 200 अरब का तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक स्मगलिंग से चला जाता है, जिसको हम रोक नहीं पा रहे अभी तक, उसको रोकें। फिर दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ पे जितनी टैक्स चोरी होती है बाकी मदात में, उनको रोके, जिसके लिए हम बार बार बात करते हैं कि अपनी जो इकोनॉमी है हमारी डिजिटलाइज होनी चाहिए, उसको डॉक्यूमेंटाइज करना चाहिए हमें। और ये सारी चीजें जब तक हम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा सकते। लेकिन हम जैसा अलमिया ये भी तो है ना कि ये जो आईपीपीस के साथ, जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, आईपीपी के साथ ये जो गलत एग्रीमेंट हो चुके हैं, हम ये कब तक कैपेसिटी चार्जेस भरते रहेंगे? तकरीबन 45,000 मेगावाट है जो कि जनरेट कर रहे हैं आईपीपीस, और सिर्फ 22,000 मेगावाट हमारी ट्रांसमिट लाइन में है। क्या उससे कोई पूछने वाला नहीं है? अमजद साहब के बकाया जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हमारी ट्रांसमिट लाइन में भी नहीं है, उसके बाद कैपेसिटी चार्जेस भी हम भर रहे हैं। प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? एग्रीमेंट तो हर हुकूमत जो करती है उसमें थोड़ा बहुत मुल्की हालात के हिसाब से थोड़ा सा होता है कि अप डाउन हो सकते हैं। हमारे तो एग्रीमेंट फिक्स ही हो गए। देखिए, इस पे जो बात है, जो आईपीपीएस की बात करते हैं, आईपीपीएस का हिस्सा है, इसमें जो हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 8,000 मेगावाट है, तकरीबन 8 या 9,000 मेगावाट है जो टोटल आईपीपीएस का। जो इस वक्त हमारी जो डिमांड है या जिसके मुताबिक हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो तकरीबन 24,000 मेगावाट है टोटल जो इस वक्त हम दे रहे हैं। और यही वजह 6,000 का तकरीबन इस वक्त शॉर्टफॉल है, और सरकारी आदेशवार तो 5,500 मेगावाट का बताते हैं। लेकिन अगर हम उसको पूरा करते हैं, मैंने आपसे यही अर्ज किया कि वो 8,000 मेगावाट के ऊपर जब हम बात करते हैं कि वो बहुत महंगी है, लेकिन बाकी तो है ना हमारे पास, उसमें क्यों महंगी है उसकी वजूहत और है। उसकी वजूहत आपके लाइन लॉसेस है, बहुत बड़ा एक फैक्टर लाइन लॉसेस का है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस है और उसकी जो आप समझ लें कि जी उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो आप एक जगह पे फर्क करें, आप लगा लेते हैं थार में एक पावर हाउस,
लेकिन उसकी आप ट्रांसमिशन नहीं कर पाते दूसरी तरह, तो वो आपके लिए उल्टा नुकसान का बायस बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें ट्रांसमिशन लाइनें बेहतर करनी है, हमें नए पावर स्टेशन लगाने हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हमें मिक्स करना है कि जी कि हमें जो सस्ती बिजली है और जो इस वक्त आईपीपीएस की बिजली, ये सारा मलबा जब हम आईपीपीएस के ऊपर डालते हैं तो इसका एक मुझे जो एक चीज नजर आती है वो ये भी होती है कि हम असल में अपनी जान छुड़ा रहे होते हैं, हम जवाब तलाश कर रहे होते हैं कि क्यों महंगी है। हम इस तरफ क्यों नहीं आते कि जी कि ये जो चोरी होती है, ये जो हमारे पास जो कैपेसिटी नहीं है इतनी, वो क्यों नहीं ना वो चोरी रोकते हैं, ना वो कैपेसिटी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ आईपीपीएस की बात करके अपना सारा मलबा उधर डाल देते हैं। वो महंगी है, मैं ये बात मेरी मतलब कतन ये नहीं है कि वो महंगी नहीं है, वो महंगी है। और उसके ऊपर लेकिन जिन हालात में, अगर आपको याद हो कि जिन हालात में वो उस वक्त एग्रीमेंट हुए थे, उस वक्त यहाँ पे हमारे पास तो बिजली नहीं थी यहाँ पे, और वो उन हालात में तो आप जैसे आप कहते हैं कि जी आप किसी शहर में जाएं, आपके पास अपना मकान ना हो तो आप किराए का मकान भी लेके रहते हैं, फिर वो तो उन हालात की बात है ना। अब उसके ऊपर जो हो चुके, अब जो कैपेसिटी चार्जेस है हमारे ऊपर, अब देखिए उन आईपीपीएस के हमें हर सूरत पे करने पड़ते हैं, एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर। इस वक्त 2800 का तकरीबन 2800 अरब रुपए का तकरीबन हमारे ऊपर सर्कुलर डेट है इस वक्त जो इनका, और उसकी वजह यह है कि उन तमाम जो पावर हाउसेज है उनकी टोटल प्रोडक्शन हम नहीं ले पा रहे, हमें उनकी लेनी चाहिए, हमें उनकी जो प्रोडक्शन है उसको अपना इस्तेमाल में लाना चाहिए, हमें सनतों को। उस पे फिर एक फैक्टर और आ जाता है, अगली बात जो उसमें आती है वो ये होती है कि जी कि जब आप उनसे बिजली कहें कि पैदा करें और सनतों को दें सब्सिडाइज, लेकिन दूसरी तरफ हम सब्सिडी नहीं दे पा सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर जो IMF का बहुत बड़ा एक दबाव है कि जी आप सब्सिडी नहीं देंगे, जितने में आप परचेज करते हैं उतने पे आगे सेल करें ताकि आपका सर्कुलर डेट ना बढ़े। ये पाकिस्तान के मुफाद में ये बात जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि हमारी सनतों को, हमारे दीगर जो बिजनेसेस हैं उनको नुकसान भी होता है इस बात का। ये एक आप समझ लेंगे जी कि एक सर्कल है जिसमें हमें घूमना पड़ रहा है इस वक्त। हमें ये सारी चीजें करने के लिए हमें अपने सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। सर, जब ये एनर्जी की ज़रूरत कैपेसिटी के हवाले से जब ये सारे प्रॉब्लम्स आए थे वफाक में, उस वक्त नून लीग की आपको याद होगा मिनिस्ट्री थी एनर्जी की, वो कहती थी कि हमें कैपेसिटी नहीं चाहिए, लेकिन पंजाब हुकूमत ने बज़िद होकर मज़ीद कैपेसिटी ऐड कर दी कि नहीं जी यूनिट्स लगाने हैं। सो नतीजतन जो कैपेसिटी पेमेंट है, चाहे वो बिजली यूज़ करें ना करें, जैसे अभी आपने भी कहा, वो तो डेफिनेटली हमें हर सूरत पे करनी है। इस वक्त सालाना 280 अरब रुपए हैं जिनकी अदायगी की जाती है। अब अगर बात करें 2015-2016 के अंदर, यानी कि मौजूदा तकरीबन 2.1 खरब से ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसे फुलफिल करने के लिए बिजली की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। इसका कोई और हल नहीं है, कोई वे आउट नहीं है इसका सर? नहीं, इस वक्त जितनी बिजली की कीमत हो चुकी है ना, अब इस वक्त हम असूली तौर पर अगर ये कहें कि जी हम नो प्रॉफिट लोड लॉस पे पहुंच चुके हैं, इस वक्त जितने की प्रोडक्शन हो रही है उससे थोड़ा सा शायद ऊपर ही होगा इस वक्त बिजली की कीमत। उसमें जो हर महीने थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि आता है कि जी इस महीने में 3 रुपए बढ़ गए यूनिट, कभी 2 रुपए बढ़ गए, कभी और हो सकता है अगली दफा जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसका नाम है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जब आती है तो हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली फ्यूल प्राइसेस डाउन हो रही हैं, तो हो सकता है अगली दफा माइनस में आ जाए, कुछ थोड़ा सा 2-3 रुपए यूनिट का रिलीफ मिल जाए लोगों को। तो ये मामला ये है कि ये इस वक्त जहां पे हम पहुंच चुके हैं ना, इससे ऊपर बिजली सिर्फ उस सूरत में अब महंगी होगी कि जब फ्यूल प्राइसेस महंगे, क्योंकि हमारी ज्यादातर बिजली फ्यूल पे फर्नेस ऑयल पे बनती है, तो जब फर्नेस ऑयल महंगा मिलेगा तो बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैंने आपसे अर्ज किया कि इस वक्त अगर आप बिजली महंगी और उसकी कीमतें कम करना चाहते हैं तो आपका काम एक बहुत बड़ा, आप ये देखिए कि कितना आपके लाइन लॉसेस, कितने लाइन लॉसेस से मुराद मेरी वो चोरी भी है जो बिजली चोरी होती है। अब इस वक्त जब आप उस चोरी को और उन लाइन लॉसेस को नहीं रोकेंगे उस वक्त तक बिजली की कीमत। लेकिन अमजद साहब, हुकूमत ये अभी हमारी वाबडा की जानिब से बड़ा एक कदम उठाया गया है। अभी मैंने कुछ बिल्स देखे हैं, कुछ बिल्स की डिटेल मैंने पिछले दिनों में देखी है। ओवर ये जो यूनिट्स है ना, ये डाले गए हैं। शायद आप भी अपने घर का बिल चेक कर लीजिएगा, पिछले महीने का और इस महीने का, कुछ में तो बड़ा क्लियरली जो मौजूदा यूनिट्स हैं उनमें, और जो पिक्चर उन्होंने उसी बिल के ऊपर लगाई है उसमें तकरीबन 20 से 25 यूनिट्स का फ़र्क है। मेरे अपने घर के एक्स्ट्रा यूनिट्स डले हुए हैं, तो ये किस कैपेसिटी में जा रहे हैं फिर?
देखिए, ये जो एक्स्ट्रा यूनिट वाली बात है, वैसे मैं आपकी बात से इत्तेफाक इस हद तक करता हूँ कि जी मैं खुद अपना जो मीटर है मैं लाजम चेक करता हूँ, ठीक है। उसमें मेरे ये होता ये है कि ये लोकल लेवल पे जो एक्सचेंज की रेंज होती है ना किसी भी इलाके की या अकाउंट ऑफिस की, वो अपना अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए वो इसलिए करते हैं कि बात ये नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि ये क्यों करते क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जस्टिफिकेशन है उनके इस करने की। जब आपका फर्क करें, आपके यूनिट इस्तेमाल हुए हैं कि 270 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, तो 300 पे जाके स्लैब चेंज हो जाती है रेट की जो है, ठीक है। वो उससे 25-30 यूनिट वो अजाफी डाल के वो अगली स्लैब में आपको डाल देते हैं, तो उससे नुकसान होता है कंज्यूमर का, सारिफ का। और ये इसको बड़ा सख्ती के साथ हमें थोड़ा सा ये करने की जरूरत है कि लेकिन इसको रोका कैसे जाए। अब की दफा जो बिल्स हैं, मैं अगले कुछ प्रोग्राम्स में ये चीज़ भी सामने लेके आऊंगी। अब की दफ़ा जो बिल्स आए हैं उसमें सिर्फ यही नहीं कि हमारे इलाके या लाहौर में ये सारा कुछ हुआ है, गुजरांवाला डिवीजन में भी मैंने कुछ बिल्स को देखा है, वहां पे भी ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा यूनिट्स का जो इशू है आखिर ये कब सॉर्ट आउट होगा? ये तो हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था। उस महीने कोई अच्छे इंसानों वाले बिल आ गए थे, उसके बाद फिर से ये मसला आ गया सामने। जी यकीनन, ये देखिए, ये जो मैं आपने जो गुजरांवाला का जिक्र किया, गुजरांवाला डिवीजन में ये हुआ था। ये गुजरांवाला रेंज आती है इसकी तकरीबन जेलम तक, जेलम से आगे फिर आइस को शुरू हो जाती है। ये गैपको की रेंज है, उसमें सियालकोट, इधर आफताबाद और ये लाहौर से आगे जो वो सारा वो उसी में आता है ये सिलसिला, ठीक है। तो ये उसमें ये हुआ, लोगों ने उसके ऊपर ओवर बिलिंग की और उनके स्टाफ ने। अच्छा, वहां पे जो वो केस था ना जिसकी आप बात कर रही हैं, वो केस उसमें कुछ और मामला थे। वो एक लंबी कहानी है, वो आप किसी वक्त मैं आपको उसकी डिटेल दूंगा। उसमें कुछ अकाउंट्स के जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे उसमें, जो उनके अपने अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें ये यूनिट लोगों को डाल देते थे और उसका जो पेमेंट्स हैं वो कहीं और जाती थी, वो वापडा के या लेस्को के या गैपको के अकाउंट में नहीं जाती थी। और ये सिर्फ एक डिवीजन में नहीं हो रहा था, ये बहुत सारी जगहों पे हो रहा था। उसके ऊपर ये कार्रवाई भी की गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन वो फिर उसके बाद वही जो रवायती यहाँ पे जो तरीकाकार हमारे यहाँ पे होता है कि कोई ना कोई उसमें दरमियान में इन्वॉल्व हुआ होगा और फिर वो बात ठंडी हो गई। ये ऐसी चीजें, इनको ठंडा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली अब दोबारा से यही इशू दोबारा से सर उठा गया है, दोबारा से ओवर बिलिंग की जा रही है। और जो अगला जो इन्होंने एक स्लॉट रखी हुई है 200 से ज़ायद, 300 से ज़ायद एक्स्ट्रा, जैसे आपने कहा कि वो स्लॉट अगले को टच कर देते हैं। तो इसमें तो आम आदमी तो पिस गया, इसके पास तो पहले ही फूड बकेट, जो बेसिक फूड बकेट है वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हमजा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे सर, FBR का क्या मसला है? FBR को अगर हम देखें तो रिफॉर्म्स की बात की जाती है, हर हुकूमत ये बात करती है। मुशर्रफ साहब के दौर के अगर हम देख लें तो उस वक्त भी उठाकर देख लें, आज तक सब ने कोशिशें करके देख ली, बशमूल मुशर्रफ साहब के दौर में भी, लेकिन इसमें कोई कामयाब नहीं हो पाया है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो टैक्स कलेक्शन है। FBR में क्यों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं ये हो पा रही? FBR का मसला ये है कि देखिए, इससे एक वजीर खजाना साहब उन्होंने एक तजवीज पेश की थी, वो मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि FBR के पूरे स्टाफ को घरों में बिठा दें, उनको तनख्वाहें हम देंगे, FBR देगा उनको, लेकिन उनको उनसे कहें कि फील्ड में न जाए, ठीक है। और उसके लिए हम फील्ड से कलेक्शन के लिए नई टीम रखेंगे, स्टाफ रखेंगे। और बात आपकी समझ में आ गई होगी कि इसमें उसमें वजह क्या थी, उन्होंने क्यों ये बात कही थी। और यही एक मसला है, फिर उनको बड़ा उसपे सख्त किस्म का रिएक्शन भी फेस करना पड़ा था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यही एक मसला है इसमें, जैसे हम अभी बात कर रहे थे बिजली के हवाले से, यही इशू FBR का बहुत बड़ा, इसमें जरूरत है रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें लोगों को बाकायदा उसमें उनकी छांटी करने की जरूरत है, जो जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, छांटी करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस के अब तक कोई हुकूमत ये नहीं कर पाई है। हमजा साहब, आगे भी कोई पता नहीं कि कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यकीनन इसके ऊपर जिस तरह का हमारे ऊपर दबाव भी है और हम चाहते भी हैं कि अपना रेवेन्यू टारगेट हासिल करें, तो फिर उसके लिए हर सूरत ये करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।